एंड हाउ मेनी ऑफ यू, आज आप लोगों में से कौन कौन बना रहे हो? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। सभी लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। ऑल ऑफ यू डू फास्ट। रीचा, मरियम, लवली, दीपू, कोमल, all of you please reply fast in the chat box so that I can continue the class. You are not having turntable, okay? No issue, you can purchase it later. आप बाद में भी खरीद सकते हो, ठीक है? तो दिस इज द चॉकलेट स्पॉन्ज जो कल हमने बनाया था, ठीक है? ये चॉकलेट स्पॉन्ज है जो हमने कल प्रिपेयर किया था। नाउ वी विल स्टार्ट कटिंग इट। हम लोग इसे कट कर लेंगे सबसे पहले। ओके रिचा, ओके कोमल, वेरी नाइस। First of all, let me introduce you with all the tools. This is cutting knife, date cutting knife or cake cutting knife you can say. ठीक है? ये विदाउट टर्न टेबल ट्राई कर सकते हो। अब मैं इसमें तो आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकती। तो बिना टर्न टेबल के बना सकते हो आप। टर्न टेबल की जगह आपको घूमना पड़ेगा चारों तरफ, ठीक है? ओके टीचर, ठीक है। आई विल गिव माय इंट्रोडक्शन बाय टुडे इटसेल्फ। First of all, let me finish this. So this is the sharp edge knife or palette knife. Okay, sorry. This is the bread knife or cake cutting knife. We will use this knife for cutting the sponge or cutting the bread. Is it clear? ये हम लोग जो नाइफ है, ब्रेड कटिंग नाइफ और केक कटिंग नाइफ, हम लोग इसे केक को कट करने में यूज करते हैं। This is palette knife. This is palette knife. We will use this palette knife on applying the cream on the cake. Do the proper garnishing on the cake. This is sharp edge knife. We will give the edges on the top with this knife. ठीक है? इस नाइफ से हम लोग साइड से भी क्लीन करते हैं। Either you apply the ganache, either you apply the cream. Okay. This is the turntable. ये turntable है in which we will make the cake. We will apply the cream. This is called cake base. इसे हम लोग केक बेस बोलते हैं जिसपे आप लोग केक रखते हो, ठीक है? Is it clear? These are the different nozzles. यहाँ पे कुछ nozzles के सेट हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं डिजाइन बनाने में, ठीक है? Is there any doubt in all the instruments? सारे टूल्स में कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कटिंग इट। सबसे पहले हम लोग स्पॉन्ज को कट करेंगे। तो हाउ यू विल कट द स्पॉन्ज? यू विल प्रेस इट ऑन द टॉप। टॉप पे आपको पाम रखना है अपना, थोड़ा सा आपको प्रेस करना है, ठीक है? इंसर्ट द नाइफ ऑन द साइड। साइड्स में आपको नाइफ इंसर्ट करना है इस तरीके से। एंड टर्न टेबल को मूव करना है। कीप योर नाइफ इट एट वन प्लेस, ठीक है? धीरे धीरे इंसर्ट करते जाना है, just like this. And here your cake sponge first layer has been cutted. ठीक है, पहला लेयर हमने कट कर लिया है। Now we will cut the second layer. अगर आपको हाइट में केक बनानी है तो आपको मोटा बेस कट करना है, ठीक है? अगर हाइट में नहीं बनानी है तो आपको पतली बेस कट करनी है। Now we will cut another layer. Is it clear? सभी को क्लियर है? Now you can see the last layer is
bottom layer is little bit crispy. So when if you will use it directly, the taste will not good. So we will remove the lower part as well. थोड़ा सा हम जो स्किन है टॉप का रिमूव कर देंगे. क्लियर है सभी को? ठीक है. Now we will take a weighted tissue. आपको एक टिश्यू वेट करके लेना है. No, if it is soft, there is no need to cut it. It is little bit crumbly because when you will cut it, it always will be little bit crumble like this. Now we will take a wetted tissue and we will keep it on the turntable. Now we will put our cake base over here. यहाँ पे हमें cake base रखना है. Why we will use the wetted tissue? Because when you will apply the cream, it will not move here and there. ठीक है? Now we will start making the cake. So this is the ganache which we have prepared yesterday, जो कल हमने बनाया था. Now we will take the first layer. हम लोग first layer ले लेंगे. Before that, we will apply little bit of ganache on the cake base. केक बेस पे हम लोग गनाश थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे so that it will not move here and there. Now take the first layer and press it gently. Now we have to apply the sugar syrup. अब हम लोग sugar syrup apply करेंगे. How you will make the sugar syrup? If you are taking 100 gram of water, you need to take 200 gram of sugar. जितनी भी quantity आपको बनानी है, उस हिसाब से आप sugar की quantity double कर देना water की quantity से. ठीक है? Now we will soak it with the help of sugar syrup. अच्छे से आपको सारी जगह पे सोक करना है शुगर सिरप से. Now we will apply the ganache. We will spread like this. Move your palette knife and spread the ganache. Move, turn the turntable. आपको इस तरीके से turntable move करते रहना है. Now keep your palette knife at one place and move it so that your layer will give the finishing. We apply sugar syrup to keep your sponge moist, ताकि आपका sponge moist रहे. Now this is the choco chips, dark choco chips. We will apply the dark choco chips on the cake base, on the cream. It is completely optional. If you want to avoid, you can avoid it. ठीक है? तो यहाँ पे dark choco chips मोडे का मैं use कर रही हूँ. I am applying it on the ganache. Yes, Richa, you can skip the sugar syrup.
बट इफ यू विल कंज्यूम इट फॉर बिफोर 1 डे, एक दिन से पहले, अगर आपको 2 से 3 दिन तक स्टोर करना है, इसका मतलब आपको शुगर सिरप जरूर से जरूर ट्राई करना है, ऐड करना है, अदरवाइज आपका जो स्पॉन्ज होगा वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है, एंड द टेस्ट विल नॉट गुड. नाउ अगेन वी विल सोक इट. Again we will apply the ganache. Now we will spread it. आप अंदर में हेजलनट भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको हेजलनट केक बनानी है तो, ठीक है. इसी तरीके से आपको साइड से भी क्लीन करते जानी है. Now again we will apply the choco chip. Here the temperature is very hot and the ganache is also melting. Now we will give the third layer. So I am adding only 3 layers. If you want, you can add 3 layers or 4 layers as well. ठीक है. Now again we will apply the sugar syrup and we will crumb coat it. अब हमें इसे crumb coating करना है ताकि आपका सेट हो सके गनाश प्रॉपर्ली. केक को सेट करना है हमें. तो हम अब ऊपर से टॉप से we will use the very less number of गनाश. बहुत ही कम हमें यूज करना है. ये फाइनल फिनिशिंग अभी हम नहीं दे रहे हैं. वी आर यूजिंग crumb coating. Chocolate to keep. No, no, you need to keep it outside, not in the fridge. फ्रिज में चॉकलेट रखोगे, डार्क कंपाउंड चॉकलेट, डार्क चोको चिप्स, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, तो आपको बाहर ही रखना है. इस तरीके से आपको क्रम कोटिंग करनी है. सारे जगह पे क्रीम बिल्कुल पतली लेयर में आपको लगा देनी है, ठीक है. जब भी आप गनाश से वर्क करो तो ध्यान रखो कि एसी रूम होना चाहिए, जहाँ पे टेम्परेचर 20 to 21, 20 to 23 टेम्परेचर होना चाहिए, तभी आपका केक अच्छे से सेट हो जाएगा, नहीं तो गनाश मेल्ट होना शुरू हो जाता है. Now we will keep it in the fridge so that it will become set properly. फ्रिज में रखना है हमें 5 to 10 मिनट्स के लिए. अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे रख सकते हो फ्रिज में. आप इसे 1 घंटे से 2 घंटे तक रख सकते हो, अच्छे से आपका सेट हो जाएगा, ठीक है.
ओके मैम, कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं वरना तो तक मैंने तो एक कप और एक मैं समझी नहीं गैलेक्सी, क्या पूछ रहे हो आप? क्लियरली अपना डाउट पूछिए। प्लीज आस्क योर डाउट क्लियरली। Okay, so we have time now. If you are having any query, you can ask me. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। Related to sponge, related to chocolate ganache, related to sugar syrup, related to cake. Any query, if you are having, you can ask me. And guys, 8th of September से जो मैंने कल आप लोग को इन्फॉर्म किया था, वो 8th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको उसकी रेसिपीज बता देती हूँ। वो 5 डेज का वर्कशॉप है, 8 से लेके 8 टू 12 ऑफ सितंबर तक चलेगा। ठीक है, 8 से 12 ऑफ सितंबर तक 5 डेज का वर्कशॉप है, जिसमें हम 10 रेसिपीज कवर करेंगे। मैं आपको रेसिपीज का नाम बता देती हूँ कौन कौन सी रेसिपी है। सबसे पहले हम लोग वनीला स्पॉन्ज बनाएंगे, कॉफी स्पॉन्ज बनाएंगे। कॉफी स्पॉन्ज के बाद हम लोग जैसे ही कॉफी स्पॉन्ज ओवर होगा, हम बनाएंगे ओपेरा केक। ठीक है, ओपेरा केक हम लोग बनाएंगे। ब्लूबेरी केक बनाएंगे। आफ्टर दैट कॉफी हेजलनट कपकेक होगा, चॉकलेट ब्राउनी, ब्राउनी बॉम्ब, कॉफी मूस, स्वीट बन एंड वेज टैकोस। 10 रेसिपीज होगी जो कि हम लोग कवर करेंगे 5 डेज के वर्कशॉप में। इस वर्कशॉप में आपको लाइव क्लास मिलेगी, पीडीएफ रेसिपीज एंड लाइफ टाइम रिकॉर्डेड वीडियोस, एज वेल एज आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको इस वर्कशॉप में नहीं मिला है। ठीक है, ये जो 2 डेज का वर्कशॉप था उसमें सर्टिफिकेट इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन ये 5 डेज का जो वर्कशॉप है उसमें सर्टिफिकेट रहेगा। ठीक है, पिज्जा इज नॉट देयर। इन प्लेस ऑफ पिज्जा आई हैव एडेड वेज टैकोस। इफ यू वांट आई विल गिव यू अ फ्री रेसिपी ऑफ पिज्जा इफ यू विल ज्वाइन दिस वर्कशॉप। ठीक है, यस, विपिंग क्रीम, सारी चीजें इसमें बताई जाएगी आपको। विपिंग क्रीम से ही हम लोग बनाएंगे ब्लूबेरी केक। ठीक है, ये ऑफर प्राइस 399 रुपीज है। अगर आज आप रजिस्टर करते हो तो आपको 299 में मिलेगा, अगर ओल्ड स्टूडेंट हो तब। ठीक है, फॉर द ओल्ड स्टूडेंट द प्राइस इज 299 ओनली इफ यू विल रजिस्टर इट बाय टुडे itself. Why I am telling you to register it by today itself? Because you can make with me during the live class itself. ठीक है, अगर मैं आप आज ज्वाइन करते हो तो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगी ताकि आप 2 से 3 दिन में अरेंज कर सको। एंड अगर आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो आपके लिए बेटर होगा कि आप लाइव क्लास में वेट करो। राइट, तो जो लोग भी रजिस्टर करना चाहते हैं वो लोग रजिस्टर कर लीजिएगा। कोमल, आप 999 वाली बात कर रहे हो आई थिंक वर्कशॉप की। ओके, तो 2 से 3 दिन में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। इट विल स्टार्ट विद इन 2 to 3 days। यस दीपू, yesterday I told you how to bake without oven. In the next workshop as well, I will teach you how to make the vanilla sponge on the gas. गैस पे मैं बनाना बताऊंगी अगले वर्कशॉप में। So how many days can store गनास? गनास को आप 7 to 8 days तक, 10 days तक स्टोर कर सकते हो अगर आप उसे कवर करके क्लीन रैप करके फ्रिज में रखते हो तब। ठीक है, तो दोज हु वांट टू ज्वाइन प्लीज रजिस्टर इट बाय टुडे ओनली। आज ही रजिस्टर कर लेना आप लोग। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स भेज देती हूँ आपके ग्रुप में, आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। प्राइस 399 रुपीज है, बट फॉर द ओल्ड स्टूडेंट द प्राइस इज 299 ओनली इफ यू विल रजिस्टर इट बाय टुडे। ऑफर इज वैलिड टिल टुडे ओनली। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।
If you are having any doubt, you can ask me. How many of you want to join the next workshop? कौन कौन ज्वाइन करना चाहते हो आप लोगों में से? Deepu wants to join, I think. What about else? Komal will also join. Very nice. गनास को बीट नहीं करना होता है. Okay, so let's finish it. कोमल मैंने अभी बताया गनास को आप 7 to 8 to 10 डेज तक स्टोर कर सकते हो. यू कैन स्टोर इट फॉर 10 डेज अगर आपको क्लीन रैप करके फ्रिज में रख रहे हो तब. ठीक है. Now we will apply the cream ganache on the top and the sides as well. जहाँ पे एक्सेस आपने चॉकलेट्स ऐड किया है वहां से आपको रिमूव कर देना है. ठीक है. Now we will apply it on the sides. इस तरीके से आपको साइड्स में लगाना है गनाश को. Now we will keep our edge knife at one place. एक जगह पे रखना है and we will remove the excess chocolates. ठीक है. Now we will do the edges. क्लीन कर लेंगे हम लोग एजेस पे. Keep your palette knife on the sides and just clean the top. जहाँ पे आपकी कम क्रीम है, जहाँ पे कम गनाश लगा है वहां पे आपको एक लगा देना है साइड से भी एंड ऑन द टॉप एज वेल. अगेन वी विल कीप इट इन द फ्रिज. फिर से हम इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए. देन वी विल अप्लाई द डिजाइन. ठीक है.
Any doubt guys? You can ask me अगर आप कोई डाउट है आपको तो. कोई डाउट है आपको? You can ask me. कैसी लगी आप लोग को क्लास? प्लीज ऑल ऑफ यू शेयर योर फीडबैक आफ्टर द क्लास. ठीक है, क्लास के बाद आप लोग फीडबैक शेयर करना in the group. I will open the group chat. कोई डाउट है आप लोगों को? Is there any doubt? And no one is saying I'm asking again and again. You guys are very boring. क्लास कैसी लगी आप लोगों को? चॉकलेट ट्रफल की. Those who are new, I think Komal is my old student and one student is also. Thank you so much. तो आप लोग कहाँ से हो सभी लोग? रायपुर कर्नाटका. एमपी इंदौर. ओके. मैंने गलती से लिक्विड बनास डाल दी थी. आप कैमरा ऑन करके दिखाओ कोमल मुझे कैसे आपने बनाया है. मैं समझ नहीं पा रही हूँ. यस बिकॉज द एवरी रेसिपी इज डिफरेंट. तो आपका सॉर्गम का रेसिपी अलग से होगा. ठीक है, क्योंकि जब हम लोग मिलेट्स की यूज करते हैं, मिलेट्स रेसिपीज अलग होती है. एंड आपका जो मैदे वाली रेसिपी होती है वो अलग आती है. आप उसे बीट कर लो फिर क्रीम से थोड़ा सा. Lovely, you can join my pre-recorded lectures which I have taken on the millets based only. In that I have teach ragi cake and millet. All recipes will be the millets, so you can join my pre-recorded lectures as well. क्योंकि क्रीम अगर जब आप व्हिपिंग क्रीम उसमें ऐड कर दोगे चॉकलेट्स, फिर आप उसे रीविप नहीं कर सकते हो. एक बार आपने व्हिपिंग क्रीम विप कर ली अगर पूरी तरीके से, आई थॉट कि आपने अभी जस्ट निकाल के रखा है, तो आपको दोबारा बीप नहीं हो गया थे, तो फिर उसे आप यूज कर लो. मूस बनाने में चॉकलेट मूस बना सकते हो. एंड ओरियो बना सकते हो, ओरियो मूस बना सकते हो, उसमें आप यूज कर लीजिए फिर. So now we will take a piping bag. And we will bana. And we will take the nozzle.
Now we will fill the ganache in the piping bag. गनाश को हम लोग पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे. We will take 2 nozzles. Now we will make the designs on the cake. So simply we will hold it and we will press like this. अगर आपको सिंपल रखना है तो इस तरीके से बना सकते हो आप. So here is your final look. Here is your final look of the cake. How is it looking? So now we will. This is the glitter duster. We will dust it. We will dust it so that your cake will look shiny. ठीक है, थोड़ा सा golden dust हम लोग sprinkle कर देंगे. After that we will add this golden foil and we will press it over the cake. And your chocolate truffle cake is ready. Okay, just wait, I am showing you. The cake is melting, guys, because very hot temperature is here. So this is the final look of the cake. Yes, it is completely eatable. Now we will keep it in the fridge. Fridge में रख देंगे ताकि अच्छे से आपका गनाश सेट हो जाए. Because it is melting now here. Yesterday someone was asking what we will do the leftover. What we will do the leftover गनाश. There is no leftover गनाश. थोड़ा बहुत बचा है, ठीक है. तो अगर आप हाफ केजी में यूज करोगे, अगर आप हाफ केजी में यूज करोगे जो मैंने आपको दिया है 250 ग्राम ऑफ
अमूल फ्रेश क्रीम एंड 300 ग्राम ऑफ डार्क कंपाउंड चॉकलेट, तो वो आपका फिनिश हो जाएगा। पाइपिंग बैग ऑलरेडी कट था पहले से ही उसमें नोजल, बिकॉज एवरी डे मैं क्लास लेती हूँ, तो हर दिन वी विल नॉट यूज द न्यू पाइपिंग बैग, आप उसको रीयूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ इज देयर एनी डाउट, यू कैन आस्क मी, कोई डाउट है? दिस गोल्डन फ्लेक्स आर eatable, yes. तो केक कैसी लगी आप लोग को? एनीवन वांट्स टू ट्राई? Okay, very nice. So guys, that's it for today's class. And those who want to register in the workshop, please do register it by today only after the class. Okay, so that I will send you all the list of materials as well as recipes. I will share the recorded lectures in the group. So bye everyone. Hope we will meet in the next workshop.